Starting the record. Okay. So, ladies and gentlemen, the topic which we have, as you know, is that if anyone, whether it's small or a large organization, wants to be connected to the internet, it needs a connection here. It needs a connection here. And this something is called the internet service provider. ठीक है क्या sir? This is called Hamra Umar. This is called the internet service provider. So the question is that this topic is about that how the small or large organizations, we are called as the enterprises, connect to the ISP for what reason? To be part of the internet. That is the important question. To be part of the internet or to be the part of the intranet or extra. So to be part of these big networks, you need a connection from your residence, may I call as the subscriber office, to this ISP. We call it the access network, or we may call it the last mile. We may call it the last mile. Ladies and gentlemen, now definitely the technologies, the methods used by the small organization and by the large organization should not be the same, because especially large organization like your UET, for example, they are interested in some other, their performance metrics are different as compared to a person who is using the internet from his home, or maybe a small office in Dean Plaza. Like for example, your organization is paying heavily every month to the Natel, but an ordinary user can't pay such a big amount. So for this reason, there are different technologies which are suitable for small or for the large organization. Gentlemen, we said about, misal ke taur pe, large organization, they want higher bandwidth. Small organization like your home doesn't require large bandwidth. Maybe your large organization requires managed services. Your small organization like your home doesn't require, small office, home office doesn't require these. So that's the reason we have divided the technologies or methods which are related to the small and to the large organization. Gentlemen, most of the organizations are definitely small. Definitely small. And for the small organizations, the methods which are available to us are, number one, you can use a dial-up modem, which is obsolete now, but the technology is definitely here. Dial-up modem. I remember that when we were beginning to start the internet, we were using this dial-up modem. And the latest modem at that time was supporting 56K. That was the 56K modem. So practically we were getting not more than 7, 8 or 10 kilobit per second. So that was the time even this small value was considered to be a big success. And this device, this dial-up modem, can be connected within your desktop, or it may be connected outside. So this machine, this modem, can be installed within your desktop or can be outside. Now, why this modem was used? That is the important question to respond. Ladies and gentlemen, the answer to this question is the following. Okay, so the answer to this question is the following, that basically this dial-up modem, the good point about this dial-up modem was that it was using the existing PSTN network.
पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, बस कोई नई चीज की जरूरत नहीं है. Just you have to buy the subscriber, the user, the customer have to buy a modem, but put it in your desktop, and this is your desktop computer, for example. So you have installed this modem here. You have installed this modem here, maybe internal or external, and you are connected to the telephone line. Telephone line. Bus. Simple. And here is the your telephone exchange, which may I call it the central office. Central office. And this central office is connected to an ISP. Finished. So you are connected to the service provider. You are connected to the service provider now, and you are getting a slow internet at your home. Not a bad idea. Now the question arises, why we are adding this modem? Why we are adding this modem? The answer is, ladies and gentlemen, that you are the central office, which we call as the telephone exchange. Telephone exchange. This part, this access network, this last mile is analog. Because it's analog because here you have a telephone set. You have a telephone set. And this telephone set is producing voice. Voice. And you know, voice is analog. So analog data is traveling from the telephone set up to the telephone exchange. But when we put the computer here, ladies and gentlemen, you know that the computer is always generate digital. It doesn't generate analog. So for this reason, you need to convert this digital, because central office को नहीं पता कि आपने अभी कंप्यूटर लगाया हुआ है या आपने टेलीफोन सेट लगाया हुआ है. So the answer is that you put a modem there, your computer is generating digital, no problem, but this modem is converted into analog, and this analog signal is going towards the telephone exchange, where it is converted into digital and then given to the ISP. Again, the ISP, when give a response back, it is digital. The central office converted into analog, and this analog signal moves towards your home. Again, you have a modem which converted into digital, and this digital signal is consumed by your computer. Makes sense? Is it clear, ladies and gentlemen? Yes, sir. Umar, Abdullah, Atif, Farzeen, Irshad, anyone? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very nice. But the major problem was here too. One, the biggest problem was that this is very slow. This is very slow. As I said, this modem support the latest modem at that time. इससे पिछले वाला 14.4 किलो का था, उसके आगे आया 28.8 का, and the latest one was 56K modem, जिसमें आपको कभी भी 8 to 10 kilobit per second से ज्यादा नहीं मिलता था. तो आजकल मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल डेल करूं, ऑल्ट कंट्रोल डेल, और आपके सामने टास्क मैनेजर पे ये दिखाने की कोशिश करूं परफॉर्मेंस को, और परफॉर्मेंस में क्योंकि इसको मैं इथरनेट पे हूं, आप देख सकते हैं आई एम सेंडिंग 1.4 मेगाबिट पर सेकेंड. और जब इस वक्त क्योंकि मैं 802.11ac इस पे बात करेंगे कि ये क्या टेक्नोलॉजी बात कर, ये वाईफाई कौन सी टेक्नोलॉजी है. Now it can support in gigabit per second. So even मैं यहाँ पे जब डाउनलोडिंग कर रहा होता हूँ by using EDROM, तो gigabits की फाइल चंद मिनट्स में मेरे पास पहुंच जाती है. So why? Because I can send more. अब मैं kilobits में नहीं हूँ कि जी it is 10 kilobit per second I am sending and receiving. No, I am sending and receiving more, and that is something desired.
That was the first reason that this dial-up process is considered now obsolete. Okay, so this is considered as obsolete. Number 2 इसका डिसएडवांटेज क्या था? नंबर 2 ये था कि अगर आपने यहाँ कंप्यूटर लगा लिया तो अगर आप, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर तो यू रिमेन कनेक्टेड फॉर आवर्स, तो इतने टाइम के लिए कोई भी वॉइस कॉल नहीं आएगी यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे फोन उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बिजी है, और अगर कोई बाहर से फोन करेगा उसको भी लगेगा कि ये फोन बिजी है। तो यूं ऑपरेटर भी इससे खुश नहीं था। ऑपरेटर भी, लाइक उस वक्त ऑपरेटर पीटीसीएल था, सिर्फ पीटीसीएल था, वो भी खुश नहीं था, क्योंकि अब जी घंटों एक नंबर बिजी हो जाता है और ना यहाँ से कॉल आती है ना कॉल जाती है, तो इट इज नॉट समथिंग डिजायरेबल। सो दैट इज द रीजन दिस फर्स्ट मेथड, दिस डायल अप मॉडेम इज नो मोर यूज्ड। फिर और जो ये आपको प्रोवाइड करता था, इससे जो भी ऊपर है इसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। तो देन वी मूव्ड फ्रॉम हियर टू द ब्रॉडबैंड, एंड द फर्स्ट अगेन, जो अच्छी बात थी, एग्जिस्टिंग पीएसटीएन यूज हुआ, कोई नई चीज नहीं हुई, जस्ट आपने एक चंद ₹100 का मॉडेम यहाँ पे ऐड किया, बाकी कोई जरूरत नहीं है। नाइस। फिर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि यू वेंट फॉर द DSL, you went for the DSL, and the DSL which we used is the ADSL. It stands for asymmetric digital subscriber line, digital subscriber line. तो यहां पे क्या किया गया कि, और asymmetric इसको क्यों कहा गया, that is an important question to answer, ladies and gentlemen. एसिमेट्रिक इसको इसलिए कहा गया कि उस पर रिक्वायरमेंट क्या थी। टेक्नोलॉजी जब बनती है तो ये देख के बनती है कि इसको जरूरत क्या है। तो जरूरत ये थी मोस्टली उस वक्त कि आपका अपलोड कम हो, लेस, while your download should be more. Your download should be more. मिसाल के तौर पे एक ऑर्डिनरी यूजर ने क्या करना होता है, सारा दिन तो वो यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड करता है, फेसबुक से वीडियोस डाउनलोड करता है, अपलोड तो सिर्फ वो पूरे दिन में कहीं 2 ईमेल्स भी नहीं करता, तो उसको ज्यादा अपलोड नहीं चाहिए, उसको ज्यादा अपलोड नहीं चाहिए, उसको ज्यादा अपलोड नहीं चाहिए, उसको ज्यादा डाउनलोड चाहिए। यही फीचर आपको ADSL ने दिया। तो इसमें क्या होता है कि पहला काम क्या किया गया कि जो 2 पुरानी खामियां थी, एक स्पीड की, वो रिमूव की गई कि नहीं जी, नाउ यू कैन हैव ब्रॉडबैंड। और दूसरी खामी जो थी कि अगर एक फोन वॉइस इस्तेमाल हो तो डेटा नहीं हो सकता, डेटा हो तो वॉइस नहीं हो सकता, ओनली वन। इस कमी को दूर किया गया। यूं क्या किया गया, मल्टीप्लेक्सिंग का सहारा लिया गया, जहां पे आपकी वॉइस और आपकी डेटा को मल्टीप्लेक्स किया गया। मल्टीप्लेक्सिंग तो हर एक को समझ आती है ना, इकट्ठा कर दें। यहाँ पे जी जेंटलमैन, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? No question. So then I can move. Mozam, Abdullah, is there any question? Laiba, Nurullah, Nurul Haq, Umar, anyone? सर डेटा और वॉइस जो है ना, ये दोनों अलग चीज है ना, तो ये मिक्स नहीं होता। जब आप मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो फिर ये मिक्स नहीं होता। जैसे अच्छी एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं और फिर इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन किसका था, ताकि मैं उसको ज्यादा
मौसम का क्वेश्चन। मौसम, आपने देखा है कि आपके घर में केबल टीवी लगा हुआ है यस और इस पे ARY भी आता है, इस पे आ, दुनिया भी आता है, इस पे आ, दुनिया के बाद ARY, जियो, बोल न्यूज। बोल, और इस तरह बहुत से और आते हैं। इस पे आपको कोई शक नहीं। एक ही केबल आपके घर की तरफ आ रही होती है, जिसको जो कि एक कोएक्सियल केबल है। तो इसके ऊपर ये सारे इकट्ठे आ रहे हैं एक ही तार पे हैं। सिर्फ आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे अपना टीवी लगाते हैं और इनको अलग अलग फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर का आपको तो नहीं पता क्या फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन आप जब बटन प्रेस करते हो रिमोट से, तो कभी ये ARY नजर आ जाता है, कभी दुनिया नजर आ जाता है, कभी जियो नजर आ जाता है, कभी बोल नजर आ जाता है, कभी कोई PTV नजर आ जाता है। इसका मतलब है कि जब आप मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो डेटा मिक्स नहीं होता। और जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक मोस्टली हम यूज करते हैं उसको कहते हैं FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यस सर। कि आप यही काम आपने, आप में से तमाम लोग GSM आजकल इस्तेमाल करते हो, अभी तक इस्तेमाल करते हो, विच इज ए 2G मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दिस GSM इज आल्सो यूजिंग FDM। क्या सारा का सारी जो बैंडविड्थ है वो सिर्फ आपको तो नहीं दे दी गई। इस मिसाल तौर पे एक एरिया है, यूनिवर्सिटी टाउन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लेट करें यूफूल के 500 सब्सक्राइबर हैं, उनमें से 50 बातें कर रहे हैं एक ही वक्त में, लेकिन वो एक दूसरे से मिक्स तो नहीं होते। इतनी होता कि कभी आपको किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी और की आ रही है। नो, बिकॉज दे हैव बीन मल्टीप्लेक्स्ड बाय यूजिंग दी FDM। So that's the reason there is no mixing. तो अगर वहां पे मिक्सिंग नहीं है तो यहाँ पे वी आर मिक्सिंग द वॉइस एंड डेटा because they have been assigned different frequencies. Basically what is happening here, ladies and gentlemen, that you place your voice here. For example, from 0 to होता तो 4K है, लेकिन you can may go up to maybe 1 meg, और 1 meg से ऊपर जो भी आपका है वो डेटा है। तो definitely they are at different frequency. That is at frequency F2 and that is at frequency F1. They can never mix with one another. They cannot interfere with one another. जी, any question? जी मौसम and everyone. सर मेरा क्वेश्चन असल में ऊपर वाले में था, ADCL में था, कि जो आपकी एक अपलोडिंग स्पीड होती है, एक डाउनलोडिंग स्पीड होती है, जो कि यूरोप में जो है, तो उधर तो इंटरनेट का इतना इश्यूज नहीं होता डाउनलोडिंग, उधर तो मैक्सिमम अपलोडिंग होगी। तो जब ये टेक्नोलॉजी आ रही थी तो मतलब ये स्पेसिफिकली हमारी एरिया के लिए आ रही थी कि नहीं, ये मतलब पूरी दुनिया के लिए? ये पूरी दुनिया के लिए देखा नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो जैसे कि आपने अब कहा कि जो चाहे यूरोप में एक ऑर्डनरी बंदा है, वो भी सारा दिन क्या करता है, फेसबुक इस्तेमाल करता है, यूट्यूब इस्तेमाल करता है, लेकिन यस सर। पाकिस्तान में है, इंडिया में है, जर्मनी में है, ऑर्डिनरी बंदे का जो बिहेवियर है दैट इज फिक्स। ओके सर, थैंक यू। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाई गई, ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हुई जी, ADSL। क्योंकि हम बैंडविड्थ हमारे पास, याद रखो, बैंडविड्थ जो होती है दैट इज ए वेरी स्कैर्स रिसोर्स, दैट इज वेरी स्कैर्स, यानी कि कीमती रिसोर्स है, आप इसको जाया नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कि बंदा जो है वो ईमेल अपलोड करेगा तो उसको कितनी बैंडविड्थ चाहिए, 10 किलोबिट पर सेकंड, तो क्यों उसको हम मेगाबिट या गीगाबिट में दें, इट विल बी वेस्टेड। दिस इज नॉट डिजायर्ड। बात समझ आ गई? थैंक यू सर। वेलकम। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? अब्दुल्ला, जकी, एनीवन? अगर ये ठीक है तो फिर मैं आगे मूव करता हूं। जी जी बिल्कुल पता चला, स्टैंडर्ड है। इट इज लेस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 megabit per second is the upload, while the download can go up to approximately 20 megabit per second. बिल्कुल पता है, हर चीज का पता है। ठीक है जी, एनीवन एल्स? तो हम बात ये कर रहे थे कि हमने क्या किया, हमने दोनों एंड के ऊपर, स्पेशली अगर मैं अब आगे फर्दर जाना चाहता हूं, यहाँ पे ये लिखिए,
बी। तो यहां पे हमने एक, जो हमारा पहला हमने टेलीफोन एक्सचेंज लिखा, मैं दोबारा यहाँ पे वही टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ पे दोबारा ले रहा हूं, और इस टेलीफोन एक्सचेंज में हमने एक स्पेशल इक्विपमेंट ऐड कर दिया जिसका नाम है मल्टीप्लेक्स, जिसका काम क्या है कि एक तरफ ये कनेक्टेड है हमारी वॉइस के साथ, और दूसरी तरफ ये कनेक्टेड है हमारी आईएसपी के साथ जहां से डेटा आता जाता है। तो हम इस डेटा को और वॉइस को मक्स के जरिए कंबाइन कर देते हैं। अब वॉइस अलग फ्रीक्वेंसी पे है, डेटा अलग फ्रीक्वेंसी पे, दे कैन नॉट मिक्स विद वन अनदर, so that will reach to our home, for example, and here we have a splitter. We have a splitter. So splitter has a single input and two outputs. One we will connect to the telephone set, and the other one we will be connected with the modem, with the DSL modem or ADSL modem. So, and here, if it is wireless, we can have the laptops, smartphones here. And if it is, शुरू में it was just wired, तो हम यहाँ पे अपनी तार के जरिए लगा लेते थे. It was like a switch. It has a modem, the facility, as well as the. So basically, the objective was that now both telephone and DSL in data can work simultaneously. And स्पीड वाज इवन गुड। जैसे अभी मैंने आपको बता रहा हूं कि जी स्पीड मुझे मेगाबिट्स में चाहिए, कल मुझे गीगाबिट्स में चाहिए होगी, तो कम से कम मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड में इट वाज ए गुड सॉल्यूशन। देन this with this ADSL, the problem arises, and especially I'm the one of the witness, okay, this technology probably I use for maybe approximately maybe more than 15 years. Lekin, especially ladies and gentlemen, when it was the COVID period, तो मुझे कहा गया कि जी घर पे बैठो और स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करो। क्या कम्युनिकेशन करो? तो टीच करो। टीच करने में मुझे कहा गया कि जी आपने वीडियोस अपने पास रिकॉर्ड करनी है और वो रिकॉर्डेड वीडियोस स्टूडेंट की तरफ थ्रो करनी है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर मेरी 9 आवर्स की क्लास है तो मुझे 9 घंटे की वीडियो बनानी है, रिकॉर्ड करनी है 9 आवर्स, और फिर वो 9 आवर्स माइट बी ए 2 गीग फाइल, मल्टीपल फाइल्स मुझे अपलोड करनी है स्टूडेंट की तरफ। ठीक है, मुझे क्लाउड में रखने हैं, कहीं भी रखना है, लेकिन मुझे अपलोड करनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी तो ADSL में, एसिमेट्रिक में ये होता कि अपलोड मेरे पास नहीं है। मेरी तो अपलोड जो है वो चंद 100 किलो की नॉर्मली मुझे मिलता है। इस वजह से ये फीचर, ये जो कम अपलोड का फीचर है, लेस अपलोड का फीचर है, ये कोई रीजनेबल नहीं रहा। और ना सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए बल्कि ऑर्डिनरी बंदे के लिए भी ये रिक्वायरमेंट बन गई कि नहीं जी मुझे मोर अपलोड चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो आप कहीं पे कहीं सैर के लिए भी गए होते हैं तो अपनी मोबाइल उठाते हैं और वीडियो बनाते हैं और उसी वक्त उसको व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर डालते जाते हो। तो ऑर्डिनरी यूजर भी आप कहते हैं मोर अपलोड इज डिजायर्ड। इस वजह से ADSL was not a good idea. Even businesses, आजकल आप देखते हैं कौन सा बिजनेस है जो कि बगैर नेटवर्क के चलता है। इवन घर पे खवातीन बैठी हुई आजकल अपने बिजनेस चला रही होती हैं, दे आर यूजिंग द इंटरनेट। मिसाल के तौर पे वो कपड़ों का कोई हिस्सा कारोबार कर रही हैं तो आप वो डेली उनकी वीडियोस बनाती हैं और अपलोड करती हैं। इसी तरह आपके जो बड़े बिजनेसेस हैं वो भी एवरी डे दे मेक द न्यू वीडियोस and they put it onto the internet. So इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कोई लुक्रेटिव एक्शन नहीं रहा कि जी I should have a less upload, इसलिए हमने कहा नहीं जी हमें अपलोड डाउनलोड दोनों ज्यादा चाहिए। इसलिए हम ADSL से, और इसका एक
वो भी ये थी ADSL की, like the modem, it was using the existing copper last mile. Still copper was being used. लेकिन जब हमें ख्याल आया कि जी we need more, so we went for the optical. We went for the optical. And in the optical, now my telephone exchange is from initially तो ये था कि टेलीफोन एक्सचेंज से ये जो आपको ये नजर आ रही है that was कॉपर, अंडरग्राउंड कॉपर, बाद में इसको फाइबर पे ले आया गया। लेकिन आपके घर के करीब इस फाइबर को यानी कि ऑप्टिकल को कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिकल, एंड देन इसको कॉपर के ऊपर आपके घर पहुंचा दिया गया, आपके घर पहुंचा दिया गया। सो फॉर मेनी इयर्स इट वर्क, लेकिन स्टिल फील ये हुआ कि ये कॉपर जो है दैट इज द बॉटल नेक, दैट इज द बॉटल नेक। उसको दूर करने के लिए क्या कहा कि इस किस्म के जहां पे कुछ पार्ट फाइबर पे और कुछ पार्ट कॉपर पे, इसको कहा गया फाइबर टू द कर्व, FTTC। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन हम मूव किया कि नहीं, हम टेलीफोन एक्सचेंज से, जिसको सेंट्रल ऑफिस भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस ऑप्टिकल में आने से पहले एक चीज एक्सप्लेन और कर दूं, एंड दैट इज दी, इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करता। पाकिस्तान में इतना ज्यादा इसको नहीं वो मिला, लेकिन हो सकता था, वीडियो में हुआ, एंड दैट वाज योर टीवी नेट, इट इज केबल नेट, केबल नेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये जो कि कोएक्स यूज करता है, कोएक्सियल केबल यूज करता है, अगर ये आपके घर तक मुख्तलिफ वीडियोस लेकर आता है, मुख्तलिफ वीडियोस लेकर आ सकता है, तो क्या ये वॉइस या डेटा नहीं ला सकता? तो जवाब मिलता है क्यों नहीं ला सकता, ला सकता। सिंपली हमें ये करना होगा कि केबल ऑपरेटर जो है, जो केबल हेड एंड कहा जाता है, केबल हेड एंड, ये जैसे टीवी लेता है, टीवी के चैनल्स लेता है, चाहे वो सैटेलाइट से लेता है, जहां से मर्जी लेता है, तो ये आपके टीवी चैनल्स हो गए। वॉइस ले आपके टेलीफोन एक्सचेंज से, और डेटा ले आपके ISP से, सबको मल्टीप्लेक्स करें और आपके घर की तरफ ले जाए। तो ये है केबल हेड एंड ट्रिपलेट सर्विस देने के काबिल हो जाए। टीवी भी, नंबर 1, हेलो भी, और डेटा। तो इस केस में डेफिनेटली हमें फिर यहाँ पे केबल मोडेम लगाना पड़ेगा, केबल मोडेम, और वो इनको जो मल्टीप्लेक्स सिग्नल यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लेक्स सिग्नल यहाँ पे आएगा, उसको वो अलग अलग करके एक पार्ट टेलीफोन को दे देगा, एक पार्ट टीवी को दे देगा, और एक पार्ट आपके कंप्यूटर को दे देगा। इसमें भी यहाँ पे बाद जगहों पे हमने कोएक्सी, यहां से केबल एंड से आपके घर के आसपास तक हम लेकर आए ऑन ए फाइबर, और आगे हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया और आगे कोएक्सियल केबल के ऊपर ले जाए। तो दैट वाज नॉट अ बैड सोल्यूशन, क्योंकि हर वो सोल्यूशन जो कि एग्जिस्टिंग टूल्स को इस्तेमाल करे या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करे, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ गुड, क्योंकि उस पे इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट मिनिमम होती है, इट इज डिजाइन।
तो एक ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान में इसको सिर्फ टीवी के लिए इस्तेमाल किया गया और बाकियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बट नॉट बैड। लेकिन ये कैन प्रोवाइड यू मोर बैंडविड्थ एज कंपेयर टू दिस ADSL। इससे DSL से ये बेहतर इसलिए है कि ये हायर अपलोड और डाउनलोड एज कंपेयर टू द ADSL प्रोवाइड कर सकता है। So that's the reason it was the third technology which can be used. Then we came to the next one, ladies and gentlemen, and that was कि जी हमें फील हुआ कि नहीं, हमें कुछ ज्यादा ही चाहिए, हमें कुछ ज्यादा ही चाहिए। और जब हमें ज्यादा की ख्वाहिश हुई तो हमने कहा नहीं जी, हम कॉपर को छोड़ के फाइबर की तरफ जाते हैं, हम फाइबर की तरफ जाते हैं। और फाइबर में आपको पता है कि द सिग्नल विच इज ट्रेवलिंग इज ऑप्टिकल, इट मीन्स लाइट, इट मीन्स नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नो इलेक्ट्रिक सिग्नल। पहले जितनी भी टेक्नोलॉजी बताई, चाहे वो मॉडेम बेस्ड है, चाहे वो डायलॉग मॉडेम बेस्ड है, चाहे वो ADSL है, चाहे वो केबल है, दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको हम कॉपर के ऊपर लेकर जाते रहे। मैंने कहा जी फाइबर रेज हैव ए ट्रिमेंडस बैंडविड्थ अवेलेबल, ट्रिमेंडस बैंडविड्थ अवेलेबल। एंड हमने कहा कि यही तो फ्यूचर है, यही तो फ्यूचर है। अगर हमें गीगास और टेरास में चाहिए तो फिर कम से कम कॉपर इस काबिल नहीं है। सो फॉर दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर दिस हमने क्या किया कि हमने पहली टेक्नोलॉजी लेकर आए फॉर वन पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, और दूसरी टेक्नोलॉजी हम ऑप्टिकल फाइबर में लेकर आए विच इज दी P फॉर पैसिव, O फॉर ऑप्टिकल एंड फॉर नेटवर्क, दी एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अब ये मैंने लास्ट ईद से पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि पैसिव का क्या मतलब होता है और एक्टिव का क्या मतलब होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर वो डिवाइस जो जिसको आपको पावर देनी पड़े उसको कहते हैं एक्टिव डिवाइस। मिसाल के तौर पे आपके घर में टीवी है, आप जब तक उसको पावर ना दें वो नहीं ऑन होता। इसी तरह आपके घर पे मिसाल को जो भी बल्ब है, पावर दें तो लाइट देता है वरना नहीं देता। AC है, पावर ना दें तो नहीं देता, कूलिंग नहीं देता। यानी जो भी आपके मस्जिद है, मस्जिद में मौलाना साहब बोलते हैं, उनकी आवाज दूर तक नहीं जा सकती, लेकिन when you talk in the mic and that mic is connected with the amplifier, so आपकी वॉइस बढ़ जाती है, उनकी पूरी मस्जिद में आवाज आना शुरू हो जाती है, बल्कि मस्जिद में क्या पूरे इलाके में आना शुरू हो जाती है। So such devices are called active devices. Ladies and gentlemen, as compared to this, the passive optical networks, as the name represent passive, passive वो है जिसको आपको पावर ना देनी। मिसाल के तौर पे आपके घर के बाहर से ये कोएक्सियल केबल गुजर रही है, मिसाल के तौर पे कोएक्सियल केबल जो कि केबल नेटवर्क की है। आप क्या करते हो, आप सिर्फ इसको यहां से कट करते हो और यहां पे एक T कनेक्टर लगा देते हो। ये T कनेक्टर लग गया, वापस ये लाइन दोबारा मौजूद हो गई। यानी कि जो आपकी डिस्कनेक्टिविटी ले आए थे बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स 1 and 2, that has been restored, that has been restored। लेकिन अब आपने भी यहां से तार ली और अपने घर पे ले जाके टीवी के साथ अटैच कर, तो क्या आपने इस कनेक्टर को कोई पावर दी? तो आंसर है नहीं दी। इसका मतलब है कि ये पैसिव डिवाइस। इसी तरह मैंने आपको अभी जब DSL बता रहा था तो मैंने आपको स्प्लिटर की एग्जांपल दी थी।
अगर मैंने आपको अगर याद हो, यहाँ पे मैंने ये स्प्लिटर आपके सामने रखा था, और मुझे याद पड़ता है मैंने आपको ईद से पहले क्लास में दिखाया भी है डीएसएल का स्प्लिटर। तो इसका काम क्या है कि देखिए, साया सिग्नल आपके टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ से आ रहा है, आपके घर पे पहुंचा, और आपने स्प्लिटर से उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन आपने इसको कोई पावर नहीं दी। इट इज ए पैसिव डिवाइस। तो जेंटलमैन, यहां पर भी आप ये करते हैं, यहां पर भी आप ये करते हैं कि आप इन केस ऑफ द पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, आप अपने टेलीफोन एक्सचेंज से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए अपने यूजर के घर तक पहुंचते हैं। इसलिए ये हो गया यूजर का घर, ये हो गया यूजर के घर, ये घर तक पहुंच रहे हैं, इसको कहते हैं फाइबर टू द होम, FTTH। लेकिन आप करते ये हैं कि यहां पे आप एक ऑप्टिकल स्प्लिटर लगा दें, ऑप्टिकल स्प्लिटर लगा दें, बिल्कुल उसी तरह कि अगर आपने क्लास 9-10 में एक प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म पे आपने लाइट गिराते थे और यहाँ पे ये लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती थी, PIBG with your GUOR probably, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, इंडिगो, वायलेट। क्या आपने इस प्रिज्म को कोई पावर दी है? नहीं, आपने तो सिर्फ इस पे सोर्स की लाइट गिराई जो कि व्हाइट लाइट है, और वो 7 कलर में टूट गई, बात खत्म। तो यहाँ पे ये स्प्लिटर का काम कर रहा है। यहां पर भी आपने एक स्प्लिटर लगा दिया और मल्टीपल आउटपुट्स इससे ले लिए। ये भी एक ऑप्टिकल आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, चौथा घर है तो चौथा आप वो दे दें। और आपने देखा भी होगा जिनके जी, इज देयर समथिंग इन चैट? सर मीटिंग टाइम इज ओवर, still we are meeting Irshad. Again, it will be within a minute, it will be down, and I will send you the next line. Is it fine? Still we have some few minutes. We are back. Okay. तो हम कह के रहे थे पॉन में कि in this case, ladies and gentlemen, the signal is coming, which is multiplex, not issue, no issue, but is splitted at the very near to our home, and still through an optical fiber. Here was an optical fiber, here was another optical fiber, which is connecting home 1, home 2, home 3, some small office, home office, and so on. So this is the passive optical network, which is mostly, आपने देखा होगा कि अगर आप अपने इलाके में कहीं पे स्टॉर्म फाइबर या इवन PTCL का पॉन नेटवर्क मौजूद है, जस्ट जो PTCL है उसको GPON का नाम देती है, बिकॉज इट इज गिविंग यू गीगाबिट बिट रेट। और अगर नया टेल है तो वो नया टेल या स्टॉर्म फाइबर उसको सिर्फ पॉन कहती है, बिकॉज मोस्टली इट प्रोवाइड यू मेगाबिट पर सेकेंड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आपने देखा होगा कि उन्होंने आपके घर के आस कहीं करीब एक बॉक्स लगाया हुआ है और उनसे वो एक एक फाइबर निकाल के घरों को दे रहे होते हैं। व्हाट दिस बॉक्स इज? स्प्लिटर। व्हाट दिस बॉक्स इज? स्प्लिटर। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हम पहुंचे अबाउट दी एक्टिव, क्योंकि लाजमी तौर पे स्प्लिटर है और स्प्लिटर के साथ साथ ये पैसिव है, तो लाजमी तौर पे जो पावर यहाँ पे होगी वो पावर यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो लाजमी तौर पे इट कवर्स गुड डिस्टेंस बट समवट लिमिटेड, और क्योंकि ये पैसिव है तो यहाँ पे किसी किस्म की एम्प्लीफिकेशन या राउटिंग कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए फिर हमने क्या किया? एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क की तरफ आए, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क की तरफ, जहां पे इस स्प्लिटर को हमने एक ऑप्टिकल रूटर से रिप्लेस कर दिया, ऑप्टिकल रूटर से रिप्लेस कर दिया। बाकी वही है, टेलीफोन एक्सचेंज वही, ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन नाउ दिस इज
सर स्प्लिटर नहीं देखा है हमने। ओके जेंटलमैन, मैं आज आप कहाँ के रहने वाले हैं? नूरुल्लाह सर बलूचिस्तान से। इस वक्त आप बलूचिस्तान में हैं? यस सर, अभी तक बलूचिस्तान में। अच्छा, तो क्या बलूचिस्तान में पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क नहीं, या बलूचिस्तान में सर होगा मसला सर। यह है कि कौन सी जगह है? क्वेटा, नहीं सर, पशीन है सर। पशीन। तो मुझे नहीं पता कि पशीन में किस किस्म का नेटवर्क है, लेकिन अगर आप पेशावर डेफिनेटली, अगर आज नहीं तो संडे तक तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मंडे से आपने क्लासेस लेनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा सकता है कि जहां भी पीक्यू के यूटी के अंदर पीटीसीएल का नेटवर्क मौजूद है, तो इनके कहीं ना कहीं आसपास स्प्लिटर होगा, तो वो आपको दिखा देंगे कि बेसिकली एक ऑप्टिकल फाइबर आता है, एक बॉक्स के अंदर टर्मिनेट होता है, और फिर उस बॉक्स से मुख्तलिफ फाइबर्स निकलते हैं, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या ऑफिसेज या बिजनेसेस की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली ये डिवाइस जो है, और उसको कोई पावर नहीं दी जा रही होती है, तो ये डिवाइस जो है ये पैसिव ऑप्टिकल फाइबर को, पॉन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर यहाँ पे इस स्प्लिटर की बजाय एक ऑप्टिकल रूटर लगा दिया जाए, तो लाजमी तौर पे, क्योंकि ये एक्टिव डिवाइस हो गया, अब ये एक्टिव डिवाइस हो गया है, तो आपका सिग्नल जितना भी ट्रेवल करके आया है, जितना भी अगर एटेनुएट हो गया है, आप उसको दोबारा से एम्पलीफाई या रीजनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी रूटिंग भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसिंग टास्क जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, और यूं आप लॉन्ग डिस्टेंस तक इसके बाद भी जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। बात समझ आ गई? ठीक है नूरुल्लाह। यस सर। यानी पश्चिम में मौसम सर्द होता है या गर्म होता है? सर सर्द है। सर्द है, अच्छा। यस सर। नहीं, अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे अबाउट नंबर 4, विच वाज अबाउट, जिसमें हम दो टाइप्स की तरफ गए, एक ऑन और एक एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क ऑन कैलिंग। इसके बाद जो, और ये सारे के सारे टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, दे आर कंसर्न विद द स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस से, स्मॉल यूजर से किस तरह हम अपने सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है ना? तो जेंटलमैन, ये तो हो गए सारे के सारे वायर्ड मेथड्स। अब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर अगर कहीं पे नहीं है पॉसिबल, दो बातें, या तो मोबिलिटी है, या तो आप मोबिलिटी के शौकीन है, आप चाहते हैं हर जगह मुझे इंटरनेट अवेलेबल हो, मोबिलिटी, और या जितनी भी ऊपर टेक्नोलॉजीज की हमने बात की है वो नॉन अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल। मिसाल तो पे गाड़ी में चल रहे हैं, तो गाड़ी में मोबिलिटी तो है, लेकिन फाइबर मेरे साथ नहीं जा सकता, कॉपर मेरे साथ नहीं जा सकती। तो ऐसे केसेस में, या कोई ऐसा इलाका है, हो सकता है कि इस वक्त जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, इनमें से कई लोग मोबाइल डेटा के जरिए मेरे साथ कनेक्ट होंगे। कोई फोन को इस्तेमाल कर रहा होगा, तो कोई सॉन्ग को इस्तेमाल कर रहा होगा, तो कोई टेलीनॉर को इस्तेमाल कर रहा होगा। जी जी, ये स्प्लिटर को अच्छी हमें, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये हमें वेरी नाइस रोहित ने भेजा, रोहिल अफरीदी ने, कि ये डीएसएल का, और ये मैंने आपको जब मैं क्लास घर से ले रहा था मैंने भी आपको दिखाया था। तो ये आप देख सकते हैं, इसका इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक इनपुट है, और इसके इस साइड पे अगर देखें तो दो आउटपुट्स। एक इनपुट आता है फ्रॉम द टेलीफोन एक्सचेंज, एक पार्ट चला जाता है टेलीफोन उसकी तरफ, फोन की तरफ, और दूसरा पार्ट चला जाता है तो आपकी मोबाइल के डीएसएल राउटर की तरफ। दिस इज ए स्प्लिटर, इट इज ए पैसिव डिवाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके साथ कोई पावर की, कोई आपको अडाप्टर नहीं लगाना पड़ता। थैंक यू वेरी मच, नाइस रोहित। और रोहिल इज लकी, देखें जो उसने एक चीज किया, सबने उसको लाइक कर दिया। ओके, तो हम बात कर रहे थे जेंटलमैन के मोबिलिटी जहां पे हो, या जहां पे मीडियम अवेलेबल, कॉपर या फाइबर का मीडियम अवेलेबल ना हो, वहां पे आप मोबाइल डेटा की तरफ
ऑर्डिनरी यूजर, स्मॉल यूजर इसको इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली ये करता क्या है मोबाइल डेटा, कि आपके आसपास कई टावर खड़ा है जिसके ऊपर एंटेनास लगे हुए हैं। आपको पता है कि एंटेना हो सकते हैं ओमनी डायरेक्शनल भी, ओमनी डायरेक्शनल भी, ओमनी डायरेक्शनल भी और डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। ओमनी डायरेक्शनल भी हो सकते हैं एंटेना, क्योंकि याद रखो कि जब भी आप वायरलेस की तरफ जाओगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर एंटेना. So it can be omnidirectional or it can be directional. And do remember again that antenna is a passive device. मिसाल के तौर पे what mean by the omnidirectional and what mean by the directional? So Abdullah, omnidirectional का मतलब ये होता है कि this is the your antenna for example and it is providing its signal in all the directions. In all the direction 360 degrees. I may call it 360 degrees. तो ऐसे एंटेना को कहते हैं ओमनी डायरेक्शन. लेकिन अगर आपको पहले से पता हो, मिसाल के तौर पे ये आपका एक ऑफिस है जो कि लेट करो ये पेशावर सिटी में, और दूसरी तरफ आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपको पता है कि जिस सिटी से यूनिवर्सिटी का रास्ता कौन सा है. So here, instead of the omnidirectional, you will be using the directional antennas. जैसे मिसाल के तौर पे अब कहां पे कौन सा डिपेंड करता है. जेंटल, तो डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल, आपका मोबाइल सेट है. अब आपकी मोबाइल सेट तो लेट कर मैं यहाँ पे यूटी में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास मोबाइल है, तो मुझे क्या पता कि ये जो अभी हमने बात की कि एक अदद एंटेना या टावर मेरे आसपास कहीं लगा हुआ है, मुझे क्या पता कि लेफ्ट पे है कि राइट पे है कि फ्रंट पे है कि बैक पे. इसलिए मजबूरतन इस केस में ओमनी डायरेक्शनल एंटेना ही मेरे कंप्यूटर में या मेरे मोबाइल में लगना चाहिए. इसी तरह अगर मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूं तो मुझे क्या पता कि मेरा जो वाईफाई का राउटर लगा हुआ है वो मेरे लेफ्ट पे है, राइट पे है, फ्रंट पे है या बैक पे है. तो अगेन यहां पर भी इसका मतलब है कि जो मेरा वाईफाई का लाइन कार्ड है जिसको एनआईसी कहते हैं, एनआईसी कहते हैं, इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लाइन कार्ड में जो एंटेना लगा होगा डेट विल बी ओमनी डायरेक्शन. लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन का पता है तो ladies and gentlemen, I will be using the directional. अब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आपके एंड पे तो ओमनी डायरेक्शनल एंटेना लगा हुआ है, लेकिन टावर के ऊपर अगर ये टावर है तो इस पे 3 एंटेनाज यूं लगाए गए होते हैं. 3 डायमेंशनल मैं नहीं दिखा सकता लेकिन 3 लगे होते हैं. तो वो बेसिकली डायरेक्शनल एंटेनाज होते हैं जो कि खास एरिया को कवर कर रहे हैं. तो फायदा क्या है, यू हैव टू गिव टू कवर ए स्पेसिफिक एरिया यू हैव टू गिव लेस पावर. पास में जा रही कि अब आप लेस एरिया को कवर, अब 360 को नहीं कर रहे हो, आप लेट करो 120 को कर रहे हो. 4 एंटेना कर दो, 90 के ऊपर लगा दी फॉर एग्जाम्पल. तो यूं आप अपने डायरेक्शनल एंटेनास के जरिए अपनी कवरेज को बेहतर बना सकते विद लेस पावर. लेकिन यहां पे मेरा जो टॉपिक है वो मैं अपने टॉपिक से हट गया कि मोबाइल डेटा के केस में यू यूज द सेलुलर फोन, सेलुलर नेटवर्क. दिस सेलुलर नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द ISP and you are connecting by using your omnidirectional antenna. You connect to the tower, where in the tower we have the DSC, yeah, node B. If you are on second generation mobile, you have the
BS कहना चाहिए, BS C is the controller, वैसे आगे BS. तो you have the base station and जिसको 3G में इसी base station को नाम क्या दे दिया गया, node B. And this node B is or BS is connected to the controller, which is called BSC, and then it is connected with the MSC, and MSC is connected with the ISP. So in this way, you sitting maybe anywhere is connected to the data network. So again, it will be used by small users. तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये मैं शायद मैंने उस दिन भी शेयर की थी, लेकिन प्रॉब्लली उस दिन लोग कम थे, इसलिए हमने इसको रिवाइज कर लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये तमाम के तमाम जो मेथड आपके साथ शेयर किए गए, वी यूज इट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस. इसके मुकाबले में लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएं, यानी इंटरप्राइजेस की तरफ जाएं, आप इंटरप्राइजेस की तरफ जाएं, तो वो इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करते, मोस्टली नहीं. वो क्या करते हैं जेंटलमैन, वो इस्तेमाल करते हैं लीज लाइन. जैसे मिसाल के, जिसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, जो कि डेडिकेटेड होता है, जो कि डेडिकेटेड होता है, सिर्फ आप इस्तेमाल करेंगे और कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा. जैसे मिसाल के तौर पे ये आपकी यूनिटी है और ये है आपका ऑपरेटर, जो कि कौन है आपका ऑपरेटर? एयरटेल. कभी भी नहीं था. लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्म भी बताता हूं कि क्या चीज है. आपका ऑपरेटर पीटीसीएल हो सकता है, ऑपरेटर पीटीसीएल है, ऑपरेटर एनटीसी है, ऑपरेटर नयाटेल है, ऑपरेटर वतीन है. ये ऑपरेटर है. मेरी बात समझ आ रही? तो इस वक्त आपका जो ऑपरेटर है वो नयाटेल है, नयाटेल है. बेसिकली आप लोग ठीक कहते हो कि पर्न क्या है? पर्न इज पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क. ये सिर्फ एचईसी का एक इदारा है जिसका काम क्या है कि तमाम यूनिवर्सिटीज को, तमाम एचआईईज को और बड़ी जल्द तमाम कॉलेजेस को भी इस पे ऐड हो जाएंगी, उनको इन ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट करवा दे. बस इसके बाद पैसा है, पैसे देता है और पीटीसीएल को कहता है यूटी से कनेक्ट को इतना कनेक्शन दे दो, फलाने को, चारसदा को, इकरा को, वगैरह वगैरह जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन ये सर्विस प्रोवाइडर ये सिर्फ एक इदारा है जो कि मॉनिटर करता है कि जी वाकई यूटी को इंटरनेट मिल रहा है, क्या वाकई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मिल रहा है, क्या वाकई पिशावर यूनिवर्सिटी को मिल रहा है, क्या वाकई केएमयू को मिल रहा है. बस बाकी ये प्रोवाइडर हरगिज. अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो जेंटलमैन, हमारे यूईटी ने क्या किया हुआ है कि यहां से इस तक, इससे पहले वतीन था, वतीन से पहले एनटीसी था, एनटीसी से पहले पीटीसीएल था, तो बदलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी योर यूनिवर्सिटी चॉइस एंड द पर्न चॉइस, बदलते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता. इस वक्त हमारे पास 480 मेगाबिट पर सेकंड की लीज लाइन है. लीज लाइन का मतलब डेडिकेटेड है. इसका मतलब है कि रात को तुम नहीं भी इस्तेमाल करते हो तो पैसे देते हो, और दिन को तुम इस्तेमाल करते हो तब भी पैसे देते हो. तुम 200 इस्तेमाल करो तब भी पैसे दोगे, तुम 400 इस्तेमाल करो तब भी पैसे दोगे. 480 तक आपके लिए श्योरिटी है कि जी ये यूटी का है. इसको कहते हैं लीज लाइन. फिर नंबर 2,
नंबर 2, जेंटलमैन, हो सकता, क्योंकि अभी हमने डीएसएल देखा, तो डीएसएल में मसला क्या था, स्पीड कम है। तो स्पीड कम है तो इंटरप्राइजेस के लिए ये अफोर्डेबल तो है, सस्ता तो है, लेकिन उनकी चॉइस को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। तो फिर हमने कहा जी हमारे पास फास्ट स्पीड डीएसएल भी है, तो वेरी हाई स्पीड डीएसएल कहते हैं, या हमारे पास फॉर एग्जांपल एसडीएसएल भी है जो कि हाई अपलोड देता है और हाई डाउनलोड देता है। मिसाल के तौर पे आपका जलसई है, बड़ा कैंपस है, लेकिन स्टूडेंट कम है, आप उसको लाजमी नहीं कि लीज लाइन पर लेकर आओ, आप उसको इस टेक्नोलॉजीज के जरिए भी अपने प्रोवाइडर के साथ, चाहे वो प्रोवाइडर आपका पीटीसीएल है, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फाइबर है, चाहे वो वतीन है, चाहे वो एनटीसी है, कोई भी है, यू कैन यूज दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक, इसी तरह नंबर 3 पे, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मिसाल के तौर पे हमारा एक एनजीओ है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कवर किया हुआ है, और उनको वजीरिस्तान में काम मिल गया है, उनको पशीन में काम मिल गया है करने के लिए, जहां पे ना फाइबर है ना कोई और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो दे कैन गो फॉर द सैटेलाइट एज वेल, दे कैन यूज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि जब अफगान वॉर कंटिन्यू थी तो उनके कई लीडर्स बीबीसी को इंटरव्यू देते थे, अभी तो पे वो किसी मोबाइल के जरिए तो नहीं दे रहे होते थे, जो मोबाइल से तो ट्रैक हो जाते, वो ना ही वहां पे कोई फाइबर बिछा हुआ था पहाड़ों में कि हम यूएस वालों को कहते जी यहाँ पे तालिबान है उनके लिए फाइबर बिछाओ, नहीं, दे वर यूजिंग बेसिकली दी सैटेलाइट। सैटेलाइट कैसे काम करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट दो तरह से है। एक तो ये होता है जैसे पीटीसीएल है मिसाल के तौर पे, तो पीटीसीएल के पाकिस्तान में 2 अर्थ स्टेशन है, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में, एक इस्लामाबाद में और एक, तो ये है आपकी जमीन अर्थ, और इसके ऊपर लट करें ये हमारा इस्लामाबाद का अर्थ स्टेशन है और ये हमारा कराची का अर्थ स्टेशन है। लाजमी तौर पे इस पे अगर ये इस्लामाबाद है तो कहीं यहाँ काबुल भी होगा, कहीं यहाँ पे न्यू दिल्ली भी होगा, एंड सो ऑन। तो जेंटलमैन, हमने 3, हम इस वक्त आपको जो बता रहे हैं वो है जियो। जियो स्टैंड फॉर दी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, यानी इनका कहने का मकसद ये हुआ कि ये स्टेशनरी है नहीं, स्टेशनरी लेकिन लगते हैं कि स्टेशनरी, यानी किस स्टेशनरी को समझते हो ना, जो हरकत ना करे। तो आपको तो पता है कि आपकी जमीन रिवॉल्व कर रही है खास स्पीड पे, तो आपने 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 120 डिग्रीज अपार्ट, एक यहां पे लेट करें, इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूं, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, और ये डिस्टेंस तकरीबन 36,000 किलोमीटर। तब हो क्या रहा है, आप, ये आपका अर्थ स्टेशन है और इसको आप कुछ भी कहें लेकिन इसको हम ट्रांसपॉन्डर कहते हैं, ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर नंबर 1 है, ये ट्रांसपॉन्डर नंबर 2 है, ये ट्रांसपॉन्डर नंबर 3। तो आपने एक बैंडविड्थ ले ली, और इसको आप स्टेशनरी क्यों कहते हो कि जमीन रिवॉल्व जिस स्पीड से कर रही है उसी स्पीड से ये भी रिवॉल्व कर रहा है, उसी स्पीड से ये भी रिवॉल्व कर रहा है।
तो जब ये यहां पहुंचता है तो फिर इस्लामाबाद भी यहां पहुंचा होता है, जब ये यहां पहुंचता है तो इस्लामाबाद भी यहां पहुंचा होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ स्टेशनरी है। क्यों अब्दुल्ला, नहीं समझ आ रही? देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे ये बॉडी मूव कर रही है, लेकिन ये लट करेंगे इसके साथ यहां पे है, तो जब ये मूव करके यहां पे है तो ये भी यहां पे आया होता है। तो ऐसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इट्स नॉट द केस, दे आर बोथ आर मूविंग बिकॉज वी नो आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग। ओके, तो होता क्या है कि हमारा जो अर्थ स्टेशन है उसकी खास बैंडविड्थ है यहां तक। तो ये कोई भी सिग्नल ये जब यहां पे भेजता है तो ये सिग्नल भेजा जाता है 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर, 6 गीगाहर्ट्ज के। अब जब 6 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल यहां पहुंचा, लेट करें कि उसने कराची, इस सिग्नल ने कराची जाना है या काबुल जाना है, इसकी डेस्टिनेशन यहां पे है, तो इसका भी इसके साथ तल्लक है। हाँ, अगर नहीं है तो इस ट्रांसपांडर को भेज देगा और फिर इस पार्ट पे आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये हुआ जेंटलमैन के आपने यहां से डेटा भेजा, इसने इस सिग्नल को पहले रिसीव किया, फिर एम्पलीफाई किया, क्योंकि 36,000 किलोमीटर का फासला इसने तय किया हुआ है, लाजमी तौर पे कमजोर एटेन्युएट हो चुका है, तो ये उसको एम्पलीफाई करता है या रीजनरेट करता है, और फिर इसको 4 गीगाहर्ट्ज पे कन्वर्ट करता है। इसलिए इसको कहते हैं ये ट्रांसपॉन्डर है। तो एक और फ्रीक्वेंसी जो कि 4 गीगाहर्ट्ज है उस पे काबुल की तरफ भेज देते। तो यूं अगर लेट करें, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी फिक्स की। अब पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ थोराया, या यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ स्टारलिंक, प्रोबेबली स्टारलिंक की है ना पाकिस्तान में, स्टारलिंक। ये कंपनीज हैं जिसके लिए आपको फिर अर्थ स्टेशन की इस तरह अलग जरूरत नहीं है इस्लामाबाद वो, आप उनका सेट लें एंड दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दीज डिवाइसेस, but it is very expensive. But if communication is must, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसकी और एक एग्जांपल, अगर आप में से किसी ने एयर ट्रैवल किया हो, तो जब आप खेलना शुरू करते हो उनके वीडियो सिस्टम के साथ, तो नजर आता है कि जी ये प्रेस करो तो यू गेट द इंटरनेट। अब लाजमी तौर पे ये तो आपको पता है कि जहाज जब लेट करें कि पेशावर से या इस्लामाबाद से राइज करता है और लेट करें कि जाके वो फ्रैंकफर्ट पे लैंड करता है, तो उसके साथ एक फाइबर जाएगा, कॉपर जाएगा। कभी जहाजों से कॉपर या फाइबर लटके हुए नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। तो वहां पे क्या है, वहां पे दैट एयरप्लेन इज कनेक्टेड विद दी सैटेलाइट, इसलिए दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप हाथ लगाते हुए भी डरते हो, हाथ लगाया है तो पैसे पड़ जाएंगे। ठीक है, जो बिजनेस क्लास में या उनमें बैठते होंगे तो वो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इकोनॉमी क्लास में मैंने किसी को नहीं देखा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि आपका मोबाइल भी वहां काम करना छोड़ देता, क्योंकि टावर उसके आसपास नहीं होते। टावर क्योंकि वो तो तकरीबन 25,000 से 30,000 के बाद का 35,000 किलोमीटर जमीन से ऊपर परवाज कर रहा होता है, टावर कहां से उसको मिलेगा। तो इस केस में भी आपका सैटेलाइट काम आता है। तो यू आर दिस डिवाइस और दिस डिवाइस कनेक्ट टू these transponders, and through these transponders you are connected with your station, and earth station के ऊपर you have different ISPs, no issue। कुछ बात समझ आ रही? तो यही चीज मैंने आज कोशिश की कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बिजनेसेस जो होते हैं या तो वो डेडिकेटेड लीज लाइन लेते हैं। हाँ, एक चीज और रह गई, वो भी बताता चलूं कि इसके अलावा आजकल के दौर में
आजकल के दौर में यू हैव दी सैटेलाइट थर्ड के बाद नंबर 4 you can have the corporate ethernet. Corporate ethernet. कॉर्पोरेट इथरनेट को मीट्रो इथरनेट भी कहते हैं, मीट्रो इथरनेट। अल्दो याद रखो लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका जो इथरनेट है ये आपको नजर आ रहा है, ये जो स्विचेस आपको नजर आ रही हैं और केबल्स नजर आ रही हैं, दे आर इथरनेट। इनिशियली इट वाज ओनली फॉर ए लैन टेक्नोलॉजी, लेकिन इथरनेट की कामयाबी की एक वजह, बल्कि दो वजह, एक इसने अपनी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ाई। पहले ये 10 मेगाबिट पर सेकंड पे था, फिर ये 100 मेगाबिट पर सेकंड पे गया, फिर ये 1 गीग पे गया, फिर ये 10 गीग पे गया, और प्रॉब्ली आजकल ये 40 गीग के आसपास। और इसने कॉपर के ऊपर भी है, ये फाइबर के ऊपर भी जाता है। एक तरफ तो ये स्पीड बढ़ाता गया, दूसरा लैन में होने की वजह से मोस्टली अगर आप यूटीपी केबल इस्तेमाल करते थे, यानी कि ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल करते थे, तो इसका लेंथ जो अलाउड था दैट वाज 100 मीटर्स ओनली, 100 मीटर्स ओनली। दूसरा काम इसने ये किया कि आपने इस 100, और अगर आप इसको कोएक्सियल पे लेकर जाते थे तो ये तकरीबन आपको 500, 200 से लेके 500 मीटर तक का फासला बगैर किसी रिपीटर के एम्पलीफायर के देता था। तो इसने दूसरा काम ये किया कि इसने अपना डिस्टेंस की रिस्ट्रिक्शन को भी ज्यादा किया, यानी बढ़ाया। यानी कि पूरे शहर में अगर आप चाहें तो इथरनेट के जरिए यू कैन कनेक्ट। तो फायदा ये हुआ कि लैन भी इथरनेट और मैन भी इथरनेट, तो ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस वाज एन टेक्नोलॉजी, recent technology which be used by the large organizations to connect to the ISPs. तो यही चीज यहां पे दिखाई गई है जेंटलमैन, कि यू कैन हैव ए लीज लाइन, लार्ज बिजनेस इंटरनेट, तो यू कैन हैव द लीज लाइंस, यू कैन हैव द मीट्रो इथरनेट, यू कैन हैव द बिजनेस DSL, जिसको मैंने VDSL या SDSL कहा, एंड यू कैन हैव द सैटेलाइट। To the satellite you can connect to the, and all of these give you higher bandwidth. It is dedicated, nobody else can use it, and these through these you can get the managed services as well. मिसाल के तौर पे you want a VPN, virtual private network, maybe a site to site, maybe it may be a remote VPN. These are the managed services. You may have the other quality of service services. Yes, you can get on these business internet connection. जबकि इसके मुकाबले में अगर हम स्मॉल होम की बात करें तो I give you the example of ADSL, I give you the example of cable, I give you the mobile data cellular, I give you the example of your dial-up. तो मोस्टली जो स्मॉल ऑफिसेज होते हैं वो सैटेलाइट पे जाने में थोड़ा सा परेशानी का सबब होता है, क्योंकि आपने अपने आसपास कितने लोगों को देखा होगा जिनके पास थोराया का या स्टारलिंक का कनेक्शन है। तो स्मॉल में भी इन बड़े ममालिक में दे में स्मॉल इसकी तरफ जा सकें, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री कांट इवन थिंक। कुछ बात समझ आ रही? तो जेंटलमैन, इसके साथ हमने ये जो हमारा इंटरनेट कनेक्शंस का टॉपिक था इस पे हमने बात की। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं है, क्योंकि 1 मिनट से कम में किसी और भी कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, और आप क्वेश्चन जल्दी से कर लें, अदरवाइज आई हैव टू क्लोज इट। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। क्वेश्चन है मेरा। जी करें।